اچھا، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بڑے سنگین مسئلے سے کر رہا ہوں، اور وہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایک میسج مجھے میرے پیارے بھائی ندیم بٹ صاحب کا آیا واٹس ایپ کے اوپر۔ انہوں نے کچھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز سینڈ کی اور بہت وہ رو رہے تھے اور غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ویڈیوز اس کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی تھی اور وہ سب و شتم کر رہے تھے۔ تو ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، 3 ویڈیو تھیں، تو تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس میں کیا ہوگا۔ پھر میں نے وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی، تو ان کی آڈیوز میں نے سنی ہیں اور بہت تکلیف اور دکھ اور درد کا اظہار کر رہے تھے۔ کاشف بھائی بھی آ گئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ میں ٹک ٹاک کو چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہے، دہریے ملحدین ہیں جو کہ یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں سارے دوستوں کے گوش گزار کرنی ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ ملحد کون ہوتا ہے؟ جس کو انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی قاعدے کلیے کو نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کسی دین مذہب کو نہیں مانتے تو یہ صرف اور صرف دین اسلام کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ ایتھیسٹ ایک بندہ ہے، ایک ملحد ہے، وہ جب کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے ایتھیسٹ کو میں جانتا ہوں، وہ انہوں نے کبھی کسی گفتگو میں شرکت کی ہی نہیں ہے۔ وہ جب کسی دین مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے تو اس کو کسی سے اعتراض بھی کو نہیں ہوتا۔ جو سمجھدار عقل مند ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی کسی مذہب میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا جب کسی مذہب سے کوئی تعلق واسطے نہیں ہے تو میری بلا سے جو مرضی کرے، مجھے ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو سمجھدار پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایتھیسٹ نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوتے ہیں۔ وہ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو کہ ایتھیسٹ بن کے سامنے آتا ہے۔ جو ملحد بن کے سامنے آتا ہے وہ نقاب اور لبادہ ایتھیسٹ کا اوڑھتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے میں تو ایک ایتھیسٹ ہوں، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میں تو تلاش کر لیتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ میں تلاش کر لیتا ہوں بندے کو کہ بندہ کون ہے۔ لیکن آپ نے مسئلہ آپ کے لیے کہ آپ نے اس بندے تک رسائی حاصل کرنی ہے، بندہ کون ہے۔ یہ جو بن کے آیا ہے نا سامنے، یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔
اب یہ دیکھیے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی یہاں پہ اس مسئلے کی سنگینی اور بریکیاں اور اندر کی باتیں کچھ بتانے لگا. دیکھیے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے, اسرائیل کے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, اسرائیل کے عالم اسلام کے ساتھ معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے, اور ان ہندوز اور یہودیوں, یہ دو طبقے, ان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اسلام, اور اسلام کی جو پوری ورلڈ کے اندر نمائندگی کر رہے ہیں نا اس ٹائم, وہ ہے پاکستان. پاکستان نمائندگی کر رہے اور صفحے اول کے اندر پاکستان لڑ رہے ان فتنوں سے, انڈیا سے, اسرائیل سے, یہودیوں سے, اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا وہ پاکستان سے. اب پاکستان کے اندر بولی جاتی ہے اردو زبان, اور پاکستان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سب سے زیادہ جو مذہبی لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے, وہ پاکستان کے, دیگر دنیا کے آپ کو اکا دکا کوئی نظر آئے گا. یہاں تو ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ ایک غیور مسلمان اور ایک طاقتور مسلمان اور ایک بہادر مسلمان موجود ہے جو کہ اس ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی, اپنے دین کی, اپنی ملت کی, ملت اسلامیہ کی, پاکستان کی, اپنی فوج کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے ہیں. تو ان انڈینز نے, یعنی انڈین کی جو وہ فورس ہے وہ ہے را, سیکرٹ جو ایجنسی ہے. یہودیوں کی, اسرائیل کی جو ہے وہ ہے موساد. تو ان ایجنسیوں نے اب کچھ اپنے جاسوس تیار کیے ہیں, جاسوس, ان کی باقاعدہ ٹریننگ یہ لوگ دیتے ہیں, اردو زبان ان کو سکھاتے ہیں, اردو زبان ان کو آتی ہوتی ہے, دین اسلام ان کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ, اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ ان کو, ان کی باقاعدہ طور پہ ٹریننگ ہوتی ہے اور تربیت کرتے ہیں یہ لوگ, اور ان کو پھر اٹھا کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو باقاعدہ, یہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایجنسیوں کی طرف سے یہ لوگ مامور ہوتے ہیں, انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ بات کی تہ تک نہیں پہنچیں گے بات سمجھ نہیں آپ کو آنی, آپ انہیں رہیں گے, آپ ایسے ٹکرے مارتے رہیں گے. اور یہ والا صاحب جو ندیم بٹ صاحب کا مجھے میسیجز آئے ہیں, یہ تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ ذرا سن کے اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ والے معاملے ہوں گے. ہر مسلمان درد مند مسلمان ہے, کوئی بھی مسلمان ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے کلیجوں کے اندر, ہمارے سینوں کے اندر کلیجہ نہیں ہے, دل نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا جو ہے نا خون کھولتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, جذبات سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن ان سارے معاملات کو پہلے آپ کو ڈیپلی سمجھنا پڑے گا, ڈیپلی, گہرائی کے اندر جا کر کے اتر کے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. جب تک نہیں سمجھیں گے تو جذبات پھر آپ کے مشتعل ہوں گے, ایسے ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا جن نے لایا گلی اودے نال اٹھ چلی. آپ ایک ظاہر چیز دیکھتے ہیں, ظاہر, اس ظاہر کے پیچھے چل پڑتے ہیں, انے واہ.
आप नहीं देखते कि उस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, उसको भी तो देखना है कि ये मामला क्या है। हम बड़े भोले मुसलमान हैं, मुसलमान बड़ी भोली कौम है इस मामले के अंदर। नात वाली बराड़ देखेंगे तो झूमना शुरू कर देंगे कि बस नातें चल रही हैं। नहीं ये देखते कि बराड़ लगाने वाला कौन है, उसने किस मकसद के लिए लगाई है, वो चाहता क्या है, उसके अगराजो मकासद क्या है, क्या उस बंदे को आप जानते भी हैं कि नहीं जानते। इसी तरीके से कोई मसल की बराडें आप देखते हैं, भाभी सुनना शिया के खिलाफ, तो उधर शामिल हो जाती हैं, आंखें बंद करके अन्ने वाह एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी शुरू कर देते हैं, हमले शुरू कर देते हैं। भेड़ चाल चली हुई है ना, भेड़ चाल चली हुई है। हम नहीं देखते मामलात क्या है, हकीकत क्या है, असल क्या है। वो नहीं है एक रवायत कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो तहकीक कर लिया करो। कुरान पाक की गाल बनाए थे, उसका ये मफहूम है। तो ये सोशल मीडिया क्या है, फिस्को फजूर है ना, वो भाई फिस्को फजूर है ना। तो ये खबर हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है ना। तो क्या वो कुरान का उस हुक्म का इतलाक इस सोशल मीडिया पे नहीं होगा? क्या तहकीक नहीं करेंगे आप? एक फासिको फाजर हमें खबर दे रहा है, हम उसकी तहकीक तो करें, असल चीज क्या है। तो ये दज्जाली हथकंडे हैं, कुर्बे क़यामत है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुखबिर सादिक नबिये गैबदा हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर मेरे माँ बाप फिदा, मेरी करोड़ जाने उन पे फिदा। उन्होंने पहले ही फरमा दिया था, कुर्बे क़यामत में फितना ऐसे फैलेगा कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। कतरे, कतरों से तशबीह क्यों दी कि वो बारिश के कतरे पे दर पे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे लाखों कतरे एक दम टपकते हैं, बरसते हैं। उनको कोई रोकना भी चाहे नहीं रुक सकते। कोई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक इजाद नहीं हुई कि उन बारिश के कतरों को रोक दे। नहीं, उन्होंने बरसना है तो बरसना है। उनकी एक दुरानिया है बरसने का। बारिश के साथ जो तशबीह दी, आप समझे इसके अंदर असरार और रमूज कितने हैं। एक घंटा बारिश हो रही है, हो के ही रहनी है, हो के ही रहनी है। और फिर बारिश पहले इब्तदा में स्लो स्लो शुरू होती है, छोटे छोटे कतरे, दरमियान में जाके एक जोश आता है, बड़े बड़े कतरे। फिर जब थमने लगती है तो एकदम नहीं थम जाती ना, फिर ऐसा 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 छोटे छोटे कतरे होके खत्म होती है। तो बारिश के कतरों के साथ तशबीह दी। फितना भी ऐसे ही होता है, इब्तदा में स्लोली स्लोली शुरू होता है, फिर एक मर्तबा जोश दिखाता है, अपना पूरा जोश दिखाएगा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा वो फितना खत्म होता है। तो ये जो फितने हैं वो बारिश के कतरे हैं दोस्तों, और इनको समझना जरूरी है। आप और मैं, आप और मैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी भी मैं सोशल मीडिया पे ही बैठा हूं ना, तो आपकी तालीम और तरबियत भी जरूरी है। जब तक तालीम और तरबियत नहीं होगी, आप अन्ने वाह टक्करे मारेंगे, कभी उधर कभी उधर, अंधेरे के अंदर तीर फेंकेंगे, तीर निशाने पे लगना ही नहीं है। ठहर जा जरा,
वो दूसरी आईडी से मैंने इस एथीस को ब्लॉक किया हुआ था, तो चलो इस आईडी पर भी नजर आ गए। यार क्या नाम है, काशिफ? जी उस्ताद मोहतरम। काशिफ, जो भी कमेंट कर रहे हैं ना एथीस जो आ रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करें मेरी इस आईडी से। ठीक हो गया उस्ताद। ब्लॉक भी करें, म्यूट भी करें। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो इसी बहाने से पकड़े जाते हैं ना, पकड़े जाते हैं। जी जी इसी बहाने से पकड़े जाते हैं। जब कोई या बोल के बंदा फंसता है तो या लिख के फंसता है। तीसरा कोई तरीका नहीं है इनको पकड़ने का, तो डायरेक्ट इनको ब्लॉक करना है। ब्लॉक और म्यूट, ब्लॉक और म्यूट दोनों काम करने मेरी आईडी से, ठीक है, ताकि मेरी आईडी से ये दूर रहे, एक फासले पर रहे। जी उस्ताद। तो ये बता रहे हैं आपको कि देखिए, जिन्ने लाया गली ओदे नाल उठ चली नहीं करना आप लोगों ने। अभी कॉलर नीचे काफी आए हैं, मैं देख रहा हूं, उठाते हैं आपको, बाद में उठाते हैं। तो इनकी आईडियों को हम ब्लॉक करते हैं, ये एक के बदले 10 और बना लेते हैं। बंदा एक ही होता है, पीछे बंदा एक ही है, बंदा एक है, आईडियां कोई 100 बनी हुई हैं, मुख्तलिफ नाम है। बसाव का दाढ़ी पग वाली तस्वीर लगाई होती है, मुसलमानों वाला नाम लिखा होता है, साथ रिजवी भी लिख लेते हैं, अतारी भी लिख लेते हैं, कादरी भी लिख लेते हैं, चिश्ती और सोहरवर्दी भी लिख लेते हैं, कारी साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब भी लिख लेते हैं। नाम लिखने का क्या है, फेक आईडी है ना, जो मर्जी लिख लो। तो कभी भी इन आईडियों के ऊपर नहीं आपने जाना जब तक आप उस बंदे के साथ कोई 4 दिन गुजारें और उसके अगराजो मकासद देखिए और उसको अच्छे तरीके से जब आप भांप लें, जांच पड़ताल कर लें, तो फिर उसके साथ कोई मुरासम कायम कीजिए। बसूरत दीगर ऐसी लाखों आईडीज हैं दोस्तों, किस किस को आप पकड़ेंगे या किस किस को कि आप करेंगे, जामे तलाशी लेंगे, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ एहतियातें और तदाबीर, एहतियाती तदाबीर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, इन पर तवज्जो देंगे तो ठीक है, बच जाएंगे, नहीं तो वो फिर कुछ भी नहीं होगा। क्या होना है, कुछ भी नहीं। आप इन फितनों को रोकना चाहेंगे, नहीं रुकेंगे। और मुखबिर सादक की जब खबर है, उन्होंने फरमाया कि ये बढ़ना है फितना, आप कहते हैं नहीं ये फितना ना बढ़े, फितना खत्म हो जाए। जीतना आपने है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने बताया? वो जीत तो मेरे सरकार की होनी है ना। उन्होंने जब फरमा दिया कि ये फितना बढ़ना है तो बढ़ के ही रहना है भाई, ये खत्म नहीं होना। कैसे खत्म होगा, नहीं होना। मशीयत इलाही कुछ ऐसी है, समझ आई कि नहीं, ये होके रहना। ये तकदीर मुबरम हकीकी है, आपको पता है ना। तकदीर की 3 किस्में होती हैं, तकदीर मुबरम हकीकी, शबी मुबरम और मुअल्लक। तो शबी मुबरम जो होती है ना, वो बदलती नहीं है, वो अटल होती है, अटल होती है, उसने होके ही रहना। और उसके मुतल्लक तो नबी भी अगर दुआ करे तो उसको रोक दिया जाता है, नहीं ये टलनी नहीं है, ये होके ही रहना। तो जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर अजाब आने लगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस टाइम मौजूद थे, तो हजरत इब्राहिम को पता चल गया, उनको गैब की खबर पता चल गई। वो कुरान कहता है युजाती लूना फी कौमी लूतिन, कौमे लूत के बारे में हमसे लड़ने लगा इब्राहिम कि अल्लाह मेरे भाई लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तू अजाब क्यों ला रहा है, ये अजाब टाल दे। तो अल्लाह पाक ने उनको भी रोक दिया, आरिद अनहाजा, एराज करो, इनसे मुंह फेर लो, ये दुआ ना करो। ये तकदीर
मुबरम हकीकी है, तो ये अटल है, ये हो के ही रहना है। तो ये जो फितने हैं दोस्तों साहिबान, ये मुबरम हकीकी है, ये होना है, होके रहना है। बसा औकात ये एथिस्ट ही इतराज करते हैं कि तुम बाबे बुजुर्गों को बड़ा मानते हो, कहते हो ये तकदीर को बदल देते हैं, कज़ा को बदल देते हैं, ये मुआमलात के अंदर तसरुफ करते हैं, तो कहाँ गए तुम्हारे बाबे, वो ये काम बदलते क्यों नहीं? तो उसका जवाब भी यही है कि ये उनको रोक दिया गया है कि इसके बारे में दुआ भी नहीं करनी, ये तुम्हारी दुआ करने से भी ये रुकना नहीं है, ये अटल है, होके रहना है, ये होना ही होना है। तो वो फिर अल्लाह के बंदे, औलिया अल्लाह, जिनके ऊपर मुनकशफ होती हैं ये चीजें, वो फिर दुआ भी नहीं करते। तो ये फितने जो फैल रहे हैं, ये तकदीर मुबरम हकीकी है साहिबान, और आप और मैं इस दौरे पुरफितन से गुजर रहे हैं, और ये भी तकदीर में है, हमें इस दौर से गुजरना है और अपना दामन बचा के, अपना पल्लू बचा के गुजरना है। ये रास्ता है, ये रास्ता है सीधा रास्ता, साइडों पर कांटे लगे हुए हैं, कुछ खाइयां भी बनी हुई हैं, कुछ खौफनाक खूनखार जानवर भी हैं साइडों पे। बस हर जगह से बच के गुजरना है, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। अहलुल्लाह के साथ रहिए, अहलुल्लाह के साथ रहिए। कूनू मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहिए, सच्चे लोगों के साथ रहिए, इंशाल्लाह बच के रहेंगे। जब आप स्वादिकीन की रफाकत को छोड़ देंगे, अहलुल्लाह की रफाकत को छोड़ देंगे, उलमा और असलाफ की रफाकतों को छोड़ देंगे, आप फिसल जाएंगे, बहक जाएंगे, बड़ी दूर निकल जाएंगे। आपने अपना आप बचाना है, इस नारे जहन्नम से अपने आप को भी बचाना है, अपने अहल को भी बचाना है। आंखें चार रखिए, अपने गिरदो नवा देखिए, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आपकी बराड़ के ऊपर कोई नया बंदा है, एकदम उसकी आईडी से आपने मरऊब नहीं हो जाना कि कोई अल्लामा साहब आए हैं, कोई मुफ्ती साहब आए हैं, कोई मुर्शद पाक आए हैं, कोई पीर साहब, पीरजादा साहब आए हैं। मरऊब नहीं होना, पहले उसको जांचे पड़तालेंगे, 4 दिन उसके साथ गुजारेंगे, उसको देखेंगे बंदा कौन है। एकदम जो है ना मरऊब नहीं होना, याद रखिएगा मेरी बात। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। याद आएंगी आपको हमारी बातें, कभी कभी याद आएंगी। सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है। एक पुराना दौर था कि बड़ा स्लोली स्लोली ये फितना उठा था, उस वक्त हम थे। ये मेरी मौजूदगी के अंदर सब कुछ हुआ है। मैंने इस रास्ते के बहुत से निशेबो फराज देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत से बदलते मामलात देखे हैं। लेकिन अभी का जो दौर है, ये वही बारिश के कतरे पहले ऐसा ऐसा शुरू हुए थे, अभी ये जोश के ऊपर है। ये फितने अपने पूरे जोश के ऊपर है। लेकिन ये खत्म होने के लिए है, इंशाल्लाह खत्म होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली। लेकिन इसी असना में आप लोगों ने आंखें चार रखनी है, आंखें चार रखनी है साहिबान। बस यही 4 बातें थी जो मैंने करनी थी, और कुछ वाज़ो नसीहत था।
अपने तई जो मैंने कर सकता था वो किया। बकाया एक और बात भी यहां पे ज़हन में आ गई, अपने मिशन से ना हटिए, खत्म नबूवत का काम कीजिए। अपने मिशन से जब हटेंगे, कोई और मौजू आप चूज करेंगे, फंस जाएंगे, निकल जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। ये मेरी बात लिख लें आप। खत्म नबूवत, रद्दे कादियानियत, रद्दे कादियानियत, बस एक एक जिंदगी का मिशन बनाए, सिर्फ रद्दे कादियानियत। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं जाना। दुश्मन आपको आपके मौजू से हटाने के लिए कोई और मौजूआत शुरू करता है, आपने नहीं, इधर उधर नहीं। आपने आगे से कहना है कि साडे बाबा जी ने सानू कहा सी कि मेरा पुत्र जिन्ने लाया गली ओदे नाल उठ चली नहीं करना। बस असी अपने बाबा जी की गल पल्ले बन्नी है, असी इधर उधर नहीं जाना ना, गल एक ही रहनी है, गल दूजी को नहीं। तू सानू अपने मौजू तो जिन्ना भी हटाएगा असी नहीं हटना, ठीक हो गया ना। तो ये चार बातें थी जी। काशिफ भाई बराड़ को आगे बढ़ाइए, शाहजेब भाई को भी की भी बात सुनिए और एक कॉलर भी उठाइए जी। जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले कॉलर हैं ट्रुथ इज ट्रुथ, आज की दिहाड़ी लगने लगी है उस्ताद मोहतरम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब। मैं कोई चंदा देना चाह रहा था, डोनेशन आपने वो आपकी आई थी, एक मैसेज आया था कि आपके मदरसे को चंदे की ज़रूरत है, तो मैंने कहा मैं उधर जमात में देता हूँ तो इधर भी दूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह इतना जमात में भी चंदा देते हैं आप? हाँ खिदमत कर रहे हैं आप जमात में भी चंदा कितनी दी है, कितनी मर्तबा दी है चंदा? दे देते हैं जितना कोई कभी हो कोई थोड़ा बहुत। कितनी चंदा दी मैं है बताएं तो सही ना। सोच रहा था कि मैं आपको कोई आपके पास ट्रांसफर कितनी कर दूं, चंदा या मैं आपको वेस्टर्न यूनियन भेज दूं, या क्या कितनी करूं? चंदा? नहीं वेस्टर्न यूनियन, उसको तो कार पे बिठा के या हवाई जहाज पे बिठा के भेजना पड़ेगा। आपने कहा कि मौजूद से नहीं हटना, अब पहुंचेगी मेरे तक मौजूद। वैसे आपकी बातें बड़ी मजेदार थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं जा नहीं सका यार। तो मुझे ये बताइएगा यार, एक बात आपसे मुरब्बी जी पूछनी है। मैं तो मुरब्बी नहीं है। कोई नहीं, वो आप जैसे कोई हम मुरब्बी कहते हैं, जो चंदा देते हैं ना अपनी ड्यूस जो होते हैं, ड्यूस, उनको हम मुरब्बी कहते हैं। जी जी जी। अच्छा एक बात पूछ रहे, मिर्जा गुलाम कादियानी जानी था? गुलाम अहमद, वो गुलाम अहमद कादियानी, आपको पता है कि नहीं इसके बारे में? अज़म मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मिर्जा कादियानी खंजीर है हमारे नजदीक, लहे सलाम। यार आपको गालियां आप किस खंजीर है नबी को वो, एक मानते हैं? नंबर का। अच्छा बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गालियां देने से मना खंजीर करते को हैं। इधर देखें, अगर आप मिर्जे को ताइफ- अभी दोबारा आपने बोला ना ये लफ्ज, तो मैं ताइफ का इत्थे वाक़या। मिर्जे दी ना होनी तंबी ला के रख देनी। पता है आपकी लीरो लीर तुम्हारी कर शक्ल दियांगा कितनी मैं, गंदी है, लेकिन पता है ना तुम्हें तुम्हें शक्ल कितनी मिर्जा साहब गंदी करके गल करनी है मेरे नाल। गंद। तो फिर तुम मिर्जा गुलाम अहमद मिर्जा कहो, साहब मिर्जा करके साहब गल कहो तो। करनी है ते इत्थे रुक जाओ। हाँ रुक जाना, रुक रुक जाना। जाओ, ठीक है, मिर्जा साहब करके। यार तुम नहीं ते इतनी मिर्जा गंदी क्यों? खंजीर नु दोबारा तुसा खंजीर नहीं कहना। जिस लोगों की तुम इस्लाह किसकी कर अच्छा रहे मैं हो तुम? एक सवाल लोगों ने किया है आपसे कि मिर्जा कादियानी जानी ये था, देखो आपको ये पता है आपका कि नहीं? बंदा बैठा है, आपको पता ये है कि नहीं आपका मिर्जा कादियानी जानी था? गंदा, ये गंदा बंदा है, देखो यार। वो चलो ठीक है, गंदा मिर्जा कादियानी जानी था, आपको पता है कि नहीं पता? मैं आता हूँ जरा नमाज पढ़ के आऊँ, हमारे वो फजर ठहर का जा, टाइम हो गया नमाज ना है तो कनाडा रुकते सही। कनाडा मिर्जा में। कादियानी कनाडा में जाते जाते कनाडा बता में रहे फजर कि का तेरी टाइम हो माँ गया। के साथ भी मिर्जे ने जना किया था कि नहीं कभी कभी? हाँ हम निकल गए। राजी खुशू खुजू वाली नमाज पढ़न गया जड़ी नहीं बहुत सारे कभी कभी जना वली अल्लाह से मसीह मूतर साहब है, कदी कदी जना दे विच ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ऑलवेज पॉजिटिव साहब, दोबारा कॉल डालें आपकी जो कॉल खत्म अच्छा होगी। भाई अता बीफ साहब ही आ गए ना। बीफ साहब लेक्चर दिता है, सुनिया जे? जी हजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। लेक्चर सुनिया जे कि नहीं? जी हजूर थोड़ा जिहा सुनिया जी। कितनी अपनी गल देर ते तो रहना सुन रहे हो? जी हजूर, वो ना अपनी गल ते ही रहना है, अपने मौजू ते रहना है। और मैं कि कितनी देर तू सुन रहे सो?
बस थोड़ी देर ही हजूर आया मैं तो फिर मैं- ਇਹ ਹੋਈ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮ से अपलोड हो जाएगा पूरा सुनना जे शुरू जी हजूर ठीक आलवेज साहब जी जनाब जी आलवेज साहब माइक म्यूट नहीं करना या थले बिठा दो काशिफ सिर्फ मेरे लफ्जां दे गौर करिया करो एक बारी मैं पूछा अगला नहीं बोलता ला दिया करो एक बारी सिर्फ मैं एक बारी कहना होंदा है कि हाँ जी बोलो जी नहीं बोलता बंदे नु थले ला दियो जी मिस्टर नाग साहब साहब आए नहीं जी नाग जी मिस्टर साहब कनेक्ट नहीं हो रहे उस्ताद मोहतरम एक निकल सेकंड कट दियो कोई नहीं अच्छा बस रोक दियो इत्थे ही स्टॉप कर दियो रिपोर्टां बज गईयां ने स्टॉप कर दियो बस तो पैगाम जो देना था वो मैंने दे दिया है इस प्रोग्राम में शरीक इंशाल्लाह मेहमान जल्द और मैं कॉल करने वालों नई की आरा ब्रांड शुरू करता हूँ उनके अपने उस जाती वक्त हैं तक के लिए और इजाजत जरूरी दीजिए। नहीं कि वो हमारे रिपोर्टां चैनल वाली और हैं। टीम के ख्यालात सलाम आरा अलैकुम। और मौकफ की अक्कासी करें हम किसी दूसरे फर्द की आरा और हमारियां मौकफ सुन पिया के मैं बाबे जिम्मेदार को मंगन लगा नहीं